और अब हम चलते हैं अपनी दूसरी बुक, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ. आई होप ऑल ऑफ अस आर मेकिंग एन अटेम्प्ट टू practice this book also. Breaking the habit of being yourself and doing things a little differently. और ये हमारे लिए रमन पढ़ रही है. हम फटाफट कंटेंट और पार्ट्स ऑफ द बुक पढ़ लेते हैं ताकि जब हम चैप्टर करें तो हमको ये पता रहे कि अच्छा ये बुक 3 पार्ट्स में है, ये पार्ट 1 के चैप्टर्स है, पार्ट 2 के. सो यस रमन, वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज स्टार्ट रीडिंग. Good morning, ma'am. Contents. Forward by Daniel G. Eman, MD. Introduction. The greatest habit you can ever break is the habit of being yourself. Part 1. The Science of You. Chapter 1. The Quantum You. Chapter 2. Overcoming your environment. Chapter 3. Overcoming your body. Chapter 4. Overcoming time. Chapter 5. Survival versus creation. Part 2. Your brain and meditation. Chapter 6. 3 brains. Thinking to doing to being. Chapter 7. The gap. Chapter 8. Meditation, demystifying the mystical and waves of your future. Part 3. Stepping toward your new destiny. Chapter 9. The meditative process. Introduction and preparation. Chapter 10. Open the door to your creative state. Week 1. Step 1. Induction. Chapter 11. Prune away the habit of being yourself. Week 2. Step 2. Recognizing. Step 3. Admitting and declaring. Step 4. Surrendering. Chapter 12. Dismantle the memory of the old you. Week 3. Step 5. Observing and reminding. Step 6. Redirecting. Chapter 13. Create a new mind for your new future. Week 4. Step 7. Creating and rehearsing. Chapter 14. Demonstrating and being transparent. Living your new reality. Afterward, Inhabit Self. Appendix A. Body part induction. Week 1. Appendix B. Water rising induction. Week 1. Appendix C. Guided meditation. Putting it all together. Weeks 2 through 4. Endnotes. Index. Acknowledgements about the author. मेजरली ये किताब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. जैसे हमने अभी देखा तो ये बहुत ही प्रोलॉन्ग हैवी वेट किताब है. तो इसके लिए प्रिपेयर होना मतलब पहले तो ये ओवरकमिंग हेल्थ, ओवरकमिंग बॉडी, ओवरकमिंग टाइम, ये सारी चीजें. तो सबसे पहले तो इंटीग्रिटी सिखाएगी हमको. ठीक है, इंटीग्रिटी के साथ ही हम चलेंगे. अब हम फॉरवर्ड पढ़ते हैं जो बहुत अच्छा लिखा हुआ है. आई लव द फॉरवर्ड ऑफ दिस बुक, जिसके बारे में समझाया है कि बेसिकली ओवरव्यू क्या है इस किताब का. हाँ जी. Forward. Your brain is involved in everything you do, including how you think, how you feel, how you act, and how well you get along with other people. It's the organ of personality, character, intelligence, and every decision you make. From my brain imaging work with tens of thousands of patients worldwide over the past 20 years, it is very clear to me that when your brain works right, you work right. And when your brain is troubled, you are much more likely to have
trouble in your life. With a healthier brain, you are happier, physically healthier, wealthier, wiser, and just make better decisions, which helps you be more successful and live longer. When the brain is not healthy for whatsoever reason, such as a head injury or past emotional trauma, people are sadder, sicker, poorer, less wise, and less successful. या It is तो ये easy. फर्स्ट टू 1 सेकेंड रामन सो फर्स्ट टू पैराग्राफ्स में डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने ये हमको बताया, फॉरवर्ड किसी और ने लिखा है, आई एम सॉरी, डॉक्टर जो डिस्पेंजा का नहीं है। सो उन्होंने बताया है कि ब्रेन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अगर हमारी, और इसमें पूरी तरह से हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। मतलब जो चीज इन दोनों पैराग्राफ से ये समझ में आ रही है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसे इंसान आ रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, या अगर बचपन में भी ऐसी कुछ चीजें हुई हैं जो जो समथिंग दैट यू डोंट लाइक, या ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं इन टर्म्स ऑफ योर बॉडी एनवायरमेंट जो भी कि जो आपके पसंद के नहीं है, विच मीन्स दैट द ब्रेन नीड्स टू रिवायर, और वो सब हमारी वजह से आ रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो इंसान कितना खराब है, मेरी जिंदगी में क्यों आया, वो ऐसा नहीं है। वी हैव अट्रैक्टेड दैट पर्सन बिकॉज हमारा ब्रेन इज सैडर एंड अनहेल्दियर। ठीक है, और इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है वो हो सकता है पास्ट ट्रॉमा की वजह से। कई बार पास्ट ट्रॉमा जो होता है वो हमको इस जन्म का नहीं याद होता है, हो सकता है याद हो सकता है बचपन में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस थी रिलेशनशिप्स में, या बहुत मनी की कमी थी, तो बहुत सारा वही डेटा फीड हो रखा है कि पैसे कम है, पैसे कम है, पैसे कम है, या बहुत ज्यादा पुलिस केसेस हो रहे थे बचपन में, तो बहुत ज्यादा ऐसे देखा हुआ था कि सब लोग परेशान हैं। तो वो परमानेंटली रिसाइड करने, वो वाली जो फीलिंग्स होती है ना, वो परमानेंटली रिसाइड कर जाती हैं हमारे ब्रेन में। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर कुछ भी आपके एनवायरमेंट में हो रहा है वो हमारी ही लाइफ के अंदर है, और सबसे अच्छी बात है कि हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो वो जैसे हमने अभी जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर्स के नाम इंडेक्स में, तो हमने पढ़ा ना कि उन्होंने ये लिखा हुआ था कि ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट हैबिट, यू नो, बिकॉज कुछ चीजें हमारी आदत बन गई है क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे। वो इस जन्म के हो सकते हैं, वो पिछले जन्म के हो सकता है वो 4 जन्मों पहले हुए थे लेकिन बहुत पावरफुल था, ठीक है, वो तब हुए थे, जिसके कारण टुडे वी आर, यू नो, लाइक इन द कंडीशन दैट वी आर राइट नाउ। सो हमको इसीलिए अपने पैटर्न्स को पहले इसमें आइडेंटिफाई करवाएंगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा कि क्या वो चीजें हैं, क्या वो थॉट पैटर्न्स हैं जिनके कारण हम नेगेटिव स्पाइरल में जाते हैं, नेगेटिव लूप में फंसे हुए हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। और वो पैटर्न वो हमारी थिंकिंग का प्रोसेस बन चुका है, जिसके कारण बाहर की चीजें चेंज नहीं हो रही है। तो हम उस पैटर्न में से ब्रेक फ्री करेंगे बिकॉज हमारे पास पूरी पावर है कि हम अपने एनवायरनमेंट को उस हिसाब से क्रिएट कर पाए जिस तरह से हम चाहते हैं, एंड दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल अस। ओके, तो वो बोल रहे हैं कि हमारा ब्रेन है, अगर हमारा ब्रेन हैप्पियर एंड हेल्दियर है तो अपने आप चीजें अच्छी होंगी, हम अच्छे डिसीजंस करेंगे, हमारे पास अच्छी पावर होगी, हम बहुत ज्यादा क्रिएटिव मोड में रहेंगे। तो ये सारी चीजें, दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू अस। ठीक है, Yeah, हाँ जी। yeah. It is easy to understand how trauma can hurt the brain, but researchers have also seen how negative thinking and bad programming from our past can also affect it. For example, I grew up with an older brother who was intent on showing me around. The constant tension and fear I felt then led to a higher level of anxiety, anxious thinking patterns, and always being on guard, never knowing when something bad was about to happen. This fear caused long term overactivity in my brain's fear centers until I was able to work through it later on in life. In breaking the habit of being yourself, my colleague, Dr. Joe Dispenza, is your guide to optimize both
the hardware and software of your brain to help you reach a new state of mind. His new book is based on solid science, and he continues to speak with kindness and wisdom as he did in the award winning film What the Bleep Do You Know? And in his first book, Evolve Your Brain. या 1 सेकेंड रमन, तो इसमें पिछले पैराग्राफ में इन्होंने बताया है कि जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इनको ना बहुत एंजाइटी न्यूरोसिस का प्रॉब्लम था, डॉक्टर जो डिस्पेंजा का, इन हिज अर्ली इयर्स, मिडिल इयर्स, जब 20s 30s 40s में, उस टाइम। तो अभी तो वो काफी बड़े हैं। तो ये बताते हैं कि ये फियर उन्होंने आइडेंटिफाई किया, ये इसलिए आया था कि उनका एक बड़ा ब्रदर था जो उनको बहुत बुली करता था, बहुत ज्यादा बुली करता था, दोनों की आपस में कभी बनी नहीं थी, और वो हमेशा पब्लिकली मतलब उनको फिजिकल अब्यूज करता था वो सब। तो इसके कारण वो पूरे टाइम बहुत सहमे डरे हुए रहते थे, बिकॉज रहते तो एक ही घर में थे, तो हर चीज से उनको डर लगता था। तो उनका परमानेंटली वो फियर फैक्टर के कारण एंजाइटी होता है, तो वो फियर के कारण उनका एंजाइटी शुरू हो गया, और वो एंजाइटी उन्होंने लेटर इन लाइफ जब उन्होंने ये सारे साइंसेस पढ़े तो उनको पता लगा कि उसका ओरिजिन वहां से है, कि जो भाई उनको इतना ज्यादा बुली करता था और अब्यूज करता था, वहां से उनका एंजाइटी का इशू आया था। उन्होंने आइडेंटिफाई किया और अपनी जिंदगी से उसको परमानेंटली निकाला। फिर उन्होंने ये मूवी इसमें बताया हुआ है, जो जिन्होंने फॉरवर्ड लिखा है कि उनकी अवार्ड विनिंग फिल्म थी व्हाट द ब्लीप डू वी नो। आई डोंट नो, अगर किसी को मिलता है इसका कोई मूवी मिलती है लाइक यूट्यूब पे या कुछ, तो आप बताना, वी कैन पोस्ट इट इन द ग्रुप ऑल्सो। आई हैव नॉट सीन इट ईदर, जिसमें डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बहुत बताया है कि किस तरह से लाइक ब्रेन वर्क करता है एंड ऑल दैट। तो उन्होंने इस मूवी में बताया है, तो डॉक्यूमेंट्री मूवी होगी ये, व्हाट द ब्लीप डू वी नो। एंड उनकी फर्स्ट बुक थी इवॉल्व योर ब्रेन, जो उन्होंने बहुत सालों पहले लिखी थी। मतलब डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें क्रिएट की, जिसमें से ये वाली जो बुक है ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि मुझे लगता है कि वाई वी डिड दिस इज हम सब इसमें फंसे हुए हैं, दैट हम अपने आप को बदलना नहीं चाह रहे हैं। मतलब वी आर सो मच लाइक, ऑफ कोर्स एक बेसिक ट्रेट पर्सनालिटी हमारा होता है जो बहुत अच्छा है, वी ऑल लव आवरसेल्व्स जस्ट द वे वी आर, बट हम कहीं कहीं पैटर्न्स में फंसे हुए हैं, इसीलिए हमको सर्टेन थिंग्स नहीं की जाती है ना। उन पैटर्न से निकल के जब चीजें करते हैं तो आपकी वो छोटे छोटे फियर फैक्टर्स चले जाते हैं। जैसे हमको डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बताया था फियर वाले चैप्टर में, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में, कि सारी वो चीजें करो जिनसे आपको डर लगता है। जैसे अगर आपको पानी से बहुत डर लगता है तो आप स्विमिंग सीखो, ठीक है, एक बार करोगे तो आपका हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से जैसे मुझे बहुत डर लगता है पानी के बीचों बीच जाने में। तो जब मैं अभी जब थाईलैंड में थी वेरी रिसेंटली, तो तब मैंने वो ग्रैटिट्यूड वॉक की थी सी बेड पे, नीचे समुद्र की सतह पे, सराउंडेड बाय कोरल्स एंड फिशेस एंड शार्क्स एंड दिस एंड हियर एंड देयर। ऑल्दो मेरा डाइवर ट्रेनर भी था साथ में, मतलब वो तो ऑब्वियसली एक जना साथ में होता है आपके, बट वो बहुत बड़ा चैलेंज था ना फॉर अ पर्सन जो पानी में वेस्ट डाउन भी नहीं जा सकता। मैं वेस्ट डाउन भी नहीं जाती हूँ उसी में, मतलब पानी बहुत ज्यादा वैसे हो जाता है, बिकॉज वो है फैक्टर जो भी है, फियर फैक्टर। अब जहां से भी है, मुझे पता नहीं है कहाँ से आया है, बट जहां से भी आया है तो ठीक है। तो जब मैंने वो किया था ना, उसके बाद इतनी सारी चीजें मेरी जिंदगी में बदली थी। देयर वाज अ करेज ऑफ अ डिफरेंट काइंड दैट केम इनटू माय लाइफ। फिर इट इज एक्चुअली सो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे मुझे हाइट से भी फोबिया है। सो मैं सारी वो चीजें ऐसी जगहों पे जाती हूँ जहां पे मुझे बहुत नीचे दिखता है, एंड देन आई जस्ट फेस इट एंड आई से आई एम सो कंफर्टेबल एंड आई एम सो कंफर्टेबल। सो डूइंग दोज थिंग्स, दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। नहीं तो फिर हमेशा ही कहेंगे ओ दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी। जैसे इसमें एक जगह पे डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने इस किताब में लिखा हुआ है, डूइंग थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स। Okay, so that will happen in your life only when we face things and we try to step out of our comfort zones and kind of doing things a little differently. This is so important for all of us,
है ना। तभी मैं आपको कई बार बोलती हूँ कि लेफ्ट हैंड से, अब जो लोग राइट हैंड से लिखते हैं वो लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करो। जैसे आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो आपका राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन, क्रिएशन वाला ब्रेन चलने लग जाता है, क्योंकि अभी वो स्टक है ना, मतलब राइट साइड, क्योंकि हम अपने लेफ्ट हैंड से बिल्कुल हिलते नहीं है। तो अगर एक बार याद है ना, आपने बताया था कि एक कोई वीडियो पोस्ट किया था इस पे, जिसमें बताया था कि रोज अपनी तारीफ करो शीशे में देख के, और जब ब्रश करते हो सुबह सुबह व्हेन यू ब्रश योर टीथ, सो होल्ड योर ब्रश विद योर लेफ्ट हैंड, बिकॉज जो लोग राइट से पकड़ते हैं, जैसे हम अगर राइट से अगर पकड़ते हैं तो आप दूसरे वाले हाथ से अपना टूथब्रश को पकड़ के करो। तो ये उन्होंने इसीलिए बताया था बिकॉज हमारा राइट ब्रेन जो होता है वो हमारी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, और हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारी राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। और हमारा क्योंकि राइट साइड ऑफ द ब्रेन क्रिएटिव ब्रेन होता है, इट विल अलाउ अस टू थिंक डिफरेंटली, अलाउ अस टू बिकम मोर मैलिएबल, adaptable, okay, and much more creative because right brain is the creative brain. तो अगर हम लेफ्ट साइड से लिखेंगे या लेफ्ट हैंड को ज्यादा यूज करेंगे या लेफ्ट हैंड से स्पून पकड़ के, इफ यू हैव अ दाल राइस और व्हाटएवर, यू नो, देन वी विल स्टिमुलेट द राइट साइड ऑफ द ब्रेन, क्योंकि हम लेफ्ट चीजें से, है ना, नर्वस सिस्टम के हिसाब से हम राइट साइड ऑफ द ब्रेन स्टिमुलेट करेंगे, तो हमारा हमारा जो क्रिएटिव ब्रेन है वो ज्यादा स्टिमुलेट होगा, वो ज्यादा प्रोसेस में आएगा हमारे। ये जो छोटी छोटी चीजें जो बहुत बड़े बड़े लोगों ने बताई है, बहुत छोटी चीज है लिखना, तो मैं तो सिर्फ 10 चीजें लिखती हूँ, बिकॉज बहुत ज्यादा नहीं लिखा जाता है मुझे, बिकॉज आई ऑलवेज रिटन विद माई राइट हैंड, तो मैं लेफ्ट हैंड से सिर्फ 10 लिखती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। और वो राइटिंग धीरे धीरे थोड़ी बेटर होती जा रही है, ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस से ही होता है ना। राइट हैंड से भी हम इतने आराम से लिख लेते हैं बिकॉज विद जो सो कंडीशन, दैट्स अ कंफर्ट जोन। So Abam, we are stepping out of the comfort zone. We are trying to break free from that thing of being myself. Myself is Deepti writes with the right hand and she has a good handwriting and she's always written with the right hand. Okay, so and she can keep writing because she writes I don't know how many gratitudes and she finishes a gratitude journal in just a week. Okay, but my left hand, no, not my comfort zone at all. Not that great a handwriting. Okay, don't know how to hold a pen also properly with my left hand. Never written. Very, very slow. Okay, so that's my stepping out of the comfort zone. So now I write, thank you, universe, and I try to maintain the line there. Okay, each time when I'm writing, I'm seeing that मेरा line के नीचे तो नहीं आ रहा है मेरा word. तो उस तरह से क्या हो रहा है, मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल बट वेरी वेरी क्रिएटिव एग्जाम्पल, बिकॉज ये करके आपका राइट साइड ऑफ द ब्रेन स्टिमुलेट होगा और आपका क्रिएशन का प्रोसेस, विजुअलाइजेशन, फ्यूचर प्रेजेंस, ये सब बहुत आसान हो जाएगा अब मेरे लिए, क्योंकि मैं रोज अपने राइट ब्रेन को स्टिमुलेट कर रही हूँ अपनी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को ज्यादा से ज्यादा यूज करके, you know, that way. जैसे मैं अगर वॉक करने जाती हूँ और मेरे हाथ में फोन होता है, because I don't have a pocket. Whenever I step out of the gym, I take about a kilometer and then I come back. So मैं जिम से निकल के मेरे हाथ में फोन होता है, जिम में तो वो एक जगह पे रखा हुआ होता है, तो मैं राइट साइड ऑफ द हैंड में ही अपना फोन सीधे उठाती हूँ। अब मैंने ये करना शुरू कर दिया, अब नहीं, मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ कि मैं अपना लेफ्ट हैंड एक्सटेंड करती हूँ अपना फोन उठाने के लिए। जिम में जहां पे भी पड़ा रहता है, स्लैब जैसा है वहां पे, तो मैं अपना लेफ्ट हैंड से अपना फोन उठाती हूँ, और जब मैं वॉक करके वापस आती हूँ अपने घर पे जिम करने के बाद, तो पूरे टाइम फोन मेरे लेफ्ट हैंड में रहता है, क्योंकि वो मेरा आउट ऑफ द कंफर्ट जोन है, वो मेरी ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द हैबिट ऑफ बीइंग माई सेल्फ है। सो आई ट्राई टू डू दैट। सो दीज आर लिटिल थिंग्स वी कैन स्टार्ट डूइंग, इनकी वजह से ही छोटे 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 चेंजेस आने लग जाते हैं, बट बड़े बड़े इफेक्ट्स होने लग जाते हैं। सो दैट इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, यू नो, दिस इज हाउ द ब्रेन गेट्स इवॉल्व्ड, और धीरे धीरे हम अपना पूरे ब्रेन को बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे, बिकॉज अभी हमने आधे ब्रेन को तो ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि हम क्रिएटिवली नहीं सोच पा रहे हैं। कई लोगों को विजुअलाइजेशन दिक्कत होता है, ऐसी चीजें। हाँ जी। Even though I think of the brain like a computer with both hardware and software. The hardware, the actual physical functioning of the brain, is not separate from the software or the constant programming and reshaping that occurs throughout our lives. They have a dramatic impact on each other. Most of us have had trauma of some kind in our lives and live with the day-to-day scars that have resulted. Cleaning out those experiences that have become
part of the brain's structure can be incredibly healing. Of course, engaging in brain healthy habits such as a proper diet and exercise and certain brain nutrients is critical to the brain working right. But in addition, your moment by moment thoughts exert a powerful healing effect on the brain, or they can work to your detriment. The same is true for past experiences that can become wired in the brain. The study we do. वन सेक सो इसमें एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये हमने सुना है। जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर हम उन मशीनों को बोलते हैं जिनमें प्रॉपर मशीन, जैसे हमारी मिक्सी है ना, सपोज जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर जो होता है, या वैसी चीजें, वो सारी हार्डवेयर में आती है। सॉफ्टवेयर हम बोलते हैं लाइक कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। उस तरह हमारे ब्रेन में कुछ चीजें हार्डवेयर, कुछ चीजें सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर आर वो रिजिड बिलीव्स जो बहुत लाइफ टाइम से हमारे ब्रेन के अंदर हैं। सॉफ्टवेयर वो है जो लगातार रीशेप एंड रीमॉडिफाई होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ करंट एक्सपीरियंसेस। कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। हो सकता है कि कोई कॉन्स्टेंटली हमको नैग कर रहा हो हमारे एनवायरमेंट में, ठीक है, या कोई कंडीशंस हैं जो बहुत ज्यादा बार बार रीशेप कर रही है, या किसी से कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हमारा, तो इस तरह से सॉफ्टवेयर हमारा लगातार रीमॉडल हो रहा होता है ना, लगातार इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो सब, और धीरे धीरे। तो इसीलिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग अलग नहीं है। ये सॉफ्टवेयर अगर रेपिटेशन के साथ ये हार्डवेयर में ही बदल जाता है और फिर ये रिजिड बिलीव्स हो जाती हैं। तो इसलिए, लेकिन इट रियली डजंट मैटर जिस तरह से हम वी गो अहेड इन आवर लाइफ्स, वी कैन रीमॉडल इज द वर्ड जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने मतलब ये सबसे ज्यादा इन्होंने यूज किया है कि रीमॉडल द सॉफ्टवेयर ऑफ अ ब्रेन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, ये चीजें जो इसमें सीखेंगे। अदर देन दैट उन्होंने बहुत चीजें हमको बताई हैं कि हमारी प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अगर हम मैदा वाली चीजें खाते हैं, हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा डैमेज होता है। अगर हम कोई भी ऐसी चीज खाते हैं जो केमिकली लोडेड है, जैसे सर्टेन सॉफ्ट ड्रिंक्स, एरेटेड बेवरेजेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, कार्बोनेटेड बेवरेजेस जो होते हैं, सोडास, तो उनसे हमारा ब्रेन बहुत जल्दी डैमेज होता है। और तो हमको थोड़ा शुगर, अगर हम व्हाइट शुगर बहुत खाते हैं, उससे हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा डैमेज होता है। उस वक्त हमें लगता है ओ आई हैव अ स्वीट टूथ एंड आई लव ईटिंग स्वीट्स एंड आई लव दिस एंड लव दैट। नथिंग लव, आपने आदत डाल रखी है। बिकॉज नाउ इट इज टाइम, अगर हम ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ से में जा रहे हैं, तो हमें ये भी तो हमारी हैबिट है कि हम पहले ओवर ईट करते हैं और दूसरा मीठा बहुत पसंद करते हैं और फिर एक्सक्यूज ये देते हैं आई हैव अ स्वीट टूथ। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ स्वीट टूथ। जो आदत आप अपने आप को देना चाहते हो वो चीज आपकी बॉडी बार बार मांगेगी, उसको बोलते हैं स्वीट टूथ। अगर मैं आज सपोज सोडास पीने लग जाऊं, एरेटेड ड्रिंक्स पीऊं और बोलूं कि मुझे तो खाया ही नहीं जाता है, मुझे तो कुछ ना कुछ एरेटेड बेवरेज चाहिए होता है जस्ट टू पुट डाउन दिस माई थ्रोट, यू नो, एंड दैट विल बिकम अ हैबिट। मेरी बॉडी उसको मांगने लग जाएगी क्योंकि मुझे मेरे बॉडी में उससे मुझे डोपामाइन किक मिलेगी, है ना। मतलब डोपामाइन किक इज मेरा हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा बिकॉज मैं बड़ी खुश होती हूँ जब मुझे बहुत अच्छा एरेटेड ड्रिंक मिलती है और वो खत्म करके मुझे बड़ा मजा आता है, और वो मजा आने लग जाएगा। वो मजा बहुत ज्यादा एडिक्टिव हो जाता है मेरे लिए। अब मुझे कल भी चाहिए होगा कुछ, मुझे अब परसों भी चाहिए होगा एरेटेड ड्रिंक। मैं खाना खाऊंगी, सपोज मैं एक बर्गर खा रही हूँ, तो मुझे उसके साथ में एक सोडा की बोतल चाहिए होगी कि मुझे ये भी पीना है। नॉट सोडा, आई मीन द एरेटेड बेवरेजेस जो होते हैं, कार्बोनेटेड बेवरेज, तो मुझे वो चाहिए होगा साथ में। ठीक है, सो दैट इट डजंट मीन दैट आई हैव गॉट अ स्वीट टूथ। हमको पता नहीं है कि हमारे ब्रेन को, कभी भी आप गूगल में टाइप करना ब्रेन एंड शुगर, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि क्या क्या डैमेजेस हमारे ब्रेन में होते हैं, you know, by eating a lot of sugar. And we really need to be very mindful of the kind of diet that we are putting into our body all the time. While eat everything, it is not that बहुत ज्यादा ऐसे सेंट की तरह once in a while सब खाओ, मजे करो, जिंदगी ऐश करने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। But be mindful. ओके, वंस इन अ वीक या वंस इन 10 days अपने आप को वो लेवरेज दो कि जब आप आइसक्रीम खाते हो या कोई मीठा लेते हो या रस मलाई खाते हो, बिकॉज शुगर एक्सट्रीमली डैमेजिंग होती है हमारे बॉडी, हमारे ब्रेन के लिए। अभी हम ब्रेन की बात कर रहे हैं,
ठीक है। तो इस तरह से मतलब मैंने एक अभी वेबिनार लिया था विच वाज अ पेड वेबिनार एट ऑफिस विच वाज कॉल्ड ब्रेन एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, और इट वाज अलार्मिंग। इट वाज मतलब मैं जब पढ़ा रही थी, पढ़ाते पढ़ाते भी मुझे लग रहा था ओ माय गॉड, यू नो, लाइक बहुत सारी चीजें पता होती है, नॉलेज है, बट जब मैं उसको बोल रही थी, 3 घंटे का वो वेबिनार था, नॉन स्टॉप में 3 घंटे स्टूडेंट्स को और अपने फैकल्टीज एंड ट्रेनर्स को ये समझा रही थी, यू नो, दैट दीज आर द चेंजेस न्यूरोकेमिकली जो हमारे शरीर में होते हैं जब हम सॉफ्ट ड्रिंक के ग्लास पीते हैं। और ब्रेन, क्योंकि उसका टाइटल था ब्रेन हेल्थ एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ओके, सो इतना ज्यादा डैमेज होता है, इसीलिए आई एम एम्फिसाइजिंग ऑन दिस दैट हमारी जो ईटिंग ड्रिंकिंग हैबिट्स होती हैं वो बहुत जरूरी होती है कि किस तरह से हमारा ब्रेन फंक्शन करता है। और एक्सरसाइज, जब आपकी बॉडी मूवमेंट करती है, ब्रेन इज हैप्पीएस्ट, ओके, तभी ब्रेन में से सारे अच्छे हेल्दी हैप्पी हॉर्मोन्स निकलते हैं, सारे वो केमिकल्स निकलते हैं जिससे ब्रेन दोबारा से रिपेयर होता है, हील होता है, और आपके नए ब्रेन सेल्स बनते हैं और दोबारा से बच्चों जैसा शार्प दिमाग हो जाता है। सो दैट ब्रेन केमिकल इज कॉल्ड BDNF, ऑफ कोर्स, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर, ये निकलता है। सो एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूरी किताब एक साइंस की क्लास भी होगी, बट मैं बहुत सटल रहने की कोशिश करूंगी, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं, बिकॉज टेक्निकल तो मेरा मेरा प्रोफेशनल फील्ड ही ऐसा है जहां पे सिर्फ हम केमिकल्स एंड ड्रग्स और उनकी बातें करते हैं, है ना, समझाने के लिए कि हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका। बट you know, to say in a very very simple language, what we need to understand is be mindful of the diet, anything that you're putting in your mouth, be very very mindful. Try and stick to a plant based diet as much as possible. Plant based diet मतलब जो जमीन से उगा हुई चीजें होती है वो खाने की कोशिश करो मैक्सिमम टाइम। जो शेल्फ से चीजें ला रहे हो वैसी जो रखी हुई है अल्ट्रा प्रोसेस्ड एंड प्रोसेस्ड, उनको अवॉइड करने की कोशिश करो जितना ज्यादा हो सकता है। और यू नो वो हमको समझना जरूरी है। बहुत अच्छे से पानी पिए क्योंकि ब्रेन 85% पानी होता है, ब्रेन पानी के कम होने पे नहीं ठीक से चलता है। और एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, हीलिंग, रिपेयरिंग और रिजुविनेशन, ये सिर्फ एक्सरसाइज से होता है ब्रेन में। आपको जो मर्जी आप कर सकते हो, जुम्बा, योगा, वॉकिंग, रनिंग, जिमिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बॉलीवुड डांसिंग, आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको पसंद आता है, बट डेडिकेटेड 30 to 45 मिनट्स आपका टाइम डेडिकेटेड मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम बता रही हूँ मैं, मैक्सिमम कैन गो अप टू 1.5 hour और व्हाटएवर, मिनिमम इतना होना चाहिए। और यही इंफॉर्मेशन हमको इकिगाई बुक में भी मिली थी जो हमने पढ़ा था कि मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और ब्रेन हेल्थ का उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और उसके साथ साथ जो तीसरी चीज यहाँ पे बताया है इज द मोमेंट टू मोमेंट थॉट्स। सो मोमेंट टू मोमेंट थॉट्स क्या है आपके, ओ मैं कितनी मोटी, मुझे कोई भी ऐसे बोल देता है, मुझे वैसे कर देता है, यू नो माई लाइफ इज लाइक दैट, कि आपके मोमेंट टू मोमेंट थॉट्स हैं, एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, माई लाइफ इज सेलिब्रेशन, लाइफ इज सो इजी एंड एफर्टलेस। अगर ये थॉट्स आपके रिप्लेस होंगे, अपने आप इसका असर आपके शरीर में होगा, ठीक है। और जो भी शरीर में इधर उधर एक्स एंड पेन्स थे, हड्डियों का प्रॉब्लम था, मस्कुलर प्रॉब्लम था, हीमोग्लोबिन रिलेटेड इश्यूज थे, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड इश्यूज थे, ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज थे, वो अपने आप जाने लगेंगे क्योंकि ब्रेन की वायरिंग अलग सिरे से हुई है अभी, ठीक है, बिकॉज बॉडी में जो होता है वो आपके ब्रेन से निकला हुआ होता है, एंड दैट इज व्हाट इट इज। एंड रमन, हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Always read very beautifully. Thank you so Thank much. you. Thank you. The study we do. So आज के हमारे टेक अवेज क्या हैं, ठीक है। अब से हम रोज ये सोचेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि पॉज लो, बीच बीच में पॉज बटन दबाना होगा, मतलब जस्ट डीप ब्रीथ। चाहे आप 3 करते हो, 3 गहरी लंबी सांसें बीच बीच में, हर एक घंटे पे, हर एक 2-2 घंटे पे, या दिन में 5 बार या 4 बार, ये हम हैबिट डालेंगे। आज से हम मोमेंट टू मोमेंट थॉट्स का ध्यान रखेंगे और डाइट और एक्सरसाइज पे एक्स्ट्रा एफर्ट, मतलब ऐसा डालेंगे कि हम एक नई आदत, बिकॉज वी आर इन दैट जर्नी ऑफ ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द हैबिट ऑफ बीइंग आवरसेल्व्स,
बिकॉज वी हैव बीन आवरसेल्व्स माइंडलेसली हम ऐसे कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, बट अब से हम ध्यान रखेंगे, हम खाना जितना भी खा रहे होंगे उससे हल्का सा कम खाएंगे, क्योंकि हमारे पेट में ऊपर थोड़ी जगह बचनी चाहिए खाना खाने के लिए। जस्ट टू लेट यू नो, हमारे पेट का साइज सिर्फ 50 ml होता है, ठीक है? 50 ml पता है ना आपको? एक ग्लास का भी आधा, मतलब अगर ये वाला ग्लास है, ये ग्लास है ऐसे, तो ये 200 ml का ग्लास है, तो 50 ml साइज हमारा पेट का होता है। तो उसको कितना बड़ा करोगे ठूस ठूस के खाना खिला के? कितना बड़ा करेंगे हम? आधा किलो खाना खा लेंगे क्या? 50 ml साइज का पेट होता है, ठीक है? तो इसीलिए योगिक शास्त्रों में लिखा हुआ है कि खाना हमें इतना ही खाना चाहिए जितना हमारा दोनों हाथों में इस तरह से आ जाए, तो उतना खाना ही एक बार पेट में डालना है, और ऊपर स्पेस रहनी जरूरी है। इसीलिए स्पेस एलिमेंट और फायर एलिमेंट दोनों ही हमारे पेट में मैंडेटरी होते हैं, है ना? फायर एलिमेंट तो होता ही है, जब हम खाना खाते हैं उसके बाद बहुत डाइजेस्टिव फायर निकलती है जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, और स्पेस एलिमेंट ऊपर होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि इतना भर दें खाने को कि पेट का साइज इतना बड़ा हो जाता है खाना खाने के बाद। तो 50 ml का पेट है, ज्यादा उसको 100 ml का ही तो करेंगे ना, मतलब बड़ा करके। अगर वो ठीक है, मान लिया कि बहुत इलास्टिक होता है और बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन आराम आराम से थोड़ा खाएंगे, है ना? और भूख आदत होती है, भूख आपके शरीर की जरूरत नहीं है। हंगर इज अ हैबिट, it is not the need of your body. We don't need so much food. We are very very sedentary these days. So just eat mindfully and enjoy. जो लोग धीरे खाना खाते हैं ना, वो कभी एक्स्ट्रा खाना नहीं खाएंगे। People like me, इतनी स्लो ईटर हूँ। कल yesterday we were having lunch in our office. So I was carrying some rajma rice from the house and something else. There was a lot of salad. A lot of salad was packed and rajma rice. अब मैंने अपने राइस का, एंड व्हेन आर भारती पैक्स एनीथिंग, शी पैक्स फॉर वन होल बारात, दिस इज अ हैबिट ऑलवेज। तो सबके लिए देगी ऑफिस में, इनको भी दे देना, उनको भी, मतलब खूब सारा खाना। अगर वो बिरयानी बनाएंगी तो वो इतनी सारी दे देंगी कि मैं सबको बांटती रहती हूँ ऑफिस में। सो मैंने वो अपना 2 चम्मच राइस लिया, राजमा लिया, लिटरली आई टुक 45 minutes टू फिनिश दैट फूड। और मैं यही देख रही थी, वो सोनिका and शिवानी, एवरीवन विथ मी, आशीष, 4 of us were eating. All of them finished the food. They sat, they washed their hands, started working, and I was still eating, which was 1/5 of the rice that I had taken. I had served in my plate and I was eating. And that, ये जो आदत होती है ना, this never allows us to eat extra, because वो savoring the food कर करके आप धीरे धीरे खा रहे हो, बिकॉज आपके ब्रेन और पेट का कनेक्शन स्लो ईटिंग के बाद ही स्टैब्लिश होता है, जब ब्रेन बताता है कि पेट भर गया। जल्दी खाना खाने वाले लोगों को ब्रेन सिग्नल नहीं दे पाता है कि क्योंकि ब्रेन और उसका कनेक्शन 20-25 मिनट के बाद स्टैब्लिश होता है, खाना खाने के 20-25 मिनट के बाद। तो 20-25 मिनट में आप कितना भी खा रहे हो, आपका ब्रेन कनेक्टेड ही नहीं है आपके पेट से, तो आपको सिग्नल ही नहीं आएगा कि आपने ओवर ईटिंग कर लिया, आपने जरूरत से ज्यादा खा लिया है। सो बी वेरी स्लो ईटर, देन यू विल सी दैट वेट ऑप्टिमाइज करना भी बहुत आसान हो जाता है, और आपको कभी कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, और अच्छे से आपकी गट बैक्टीरियाज और हेल्थ भी बनेंगे, और ब्रेन हेल्थ उसकी वजह से बहुत अच्छी होगी। So that is why we have a lot of science की क्लास like this, but ये पूरी किताब ही ऐसी होने वाली है। So इसीलिए अपने टेक अवेज देखना, that what is it that I have taken away, ठीक है? So this goes for all of us. We will do that every day. और ये करने से ब्रेन बहुत शार्पन होता है। अगर आप बाद में सोचते हो ना कि मैंने आज क्या क्या सीखा, इसकी वजह से ब्रेन बहुत शार्प होता है। तो इसीलिए अपने टेक अवेज हम देखेंगे, एंड थैंक यू सो मच।